to all. I am Lalita Sharma from Surat School Mahendragarh, lecturer of economics. Today we are going to discuss about the topic factors. It is also called the determinants of demand. In the previous class we also discussed about the demand, quantity demanded, individual demand and market demand. Then today we discuss the factors or determinants which are constant when we apply the law of demand. It is also called the function. Yani demand is the function of Px, Pr, taste and preferences, income of the consumers, population, distribution of income. Then one by one we already discussed about this, and also we also include the expectation, future expectation. The first is Px. Px, it means price of on commodity. It means price of on commodities and demand are negatively related. When the price of on commodities increases, then demand also decreases, and vice versa. It means price and demand are negatively related. The price of on commodities is only the changeable factor, and other are constant when we apply the law of demand. Then second is PR. It means price of related goods. रिलेटेड गुड्स या अदर गुड्स भी कहा जाता है. We have the two types of the related goods. The first is substitute goods. And the second is complementary goods. Then first of all, what do you mean by the substitutes goods? Substitutes goods are those goods which can be replaced in one another या which can be substitutes for each other. यानी जिसको हम एक दूसरे के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं, एक दूसरे के स्थान पर बदल सकते हैं. These are called the substitutes goods. For example, जैसे कोक एंड पेप्सी है. कोक एंड पेप्सी है, इसमें हम बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हैं क्योंकि हमारी इकोनॉमी में मोस्टली जो गुड्स पाई जाती हैं, दीज आर द सब्स्टिट्यूट्स गुड्स. टी है, ब्रुक बॉन्ड है, ताजमहल है, रेड लेबल है, साबुन में ले लो, लक्स है, हमाम है, डव है. दीज आर ऑल्सो द सब्स्टिट्यूट्स गुड्स. इट मीन्स देन वी ऑल्सो डिस्कस कि व्हेन द प्राइस ऑफ वन सब्स्टिट्यूट्स गुड्स चेंज्ड, देन व्हाट चेंजेस इन द डिमांड ऑफ अदर सब्स्टिट्यूट्स गुड्स. इट मीन्स अगर सपोज करें कोक की जो प्राइस है, कोक एंड पेप्सी, कोक की प्राइस इंक्रीज हो जाती है, देन व्हाट इफेक्ट्स ऑन द डिमांड ऑफ द अनदर गुड्स. यानी इसी की डिमांड पर हम इसका इफेक्ट शो नहीं करते हैं. वी ऑल्सो शोज द इफेक्ट ऑन द रिलेटेड गुड्स. इट मीन्स द डिमांड ऑफ पेप्सी. It means when the price of Coke increases, then demand of the Pepsi also increases, right? But there is no change in the price of Pepsi. And when the price of Coke decreases, then demand of Pepsi also decreases. So we can also say that the price of one substitutes goods and demand of other substitutes goods are positively related. It means इन दोनों में positive relations पाया जाता है. Then second is complementary goods. What do you mean by the complementary goods? Which complete our wants jointly, या which can not used without one another. जिनको हम एक दूसरे के बिना यूटिलाइज नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते हैं. These are called the complementary goods. जैसे ब्रेड एंड बटर है, राइट, एज ए कार एंड पेट्रोल है. तो इट मीन्स फिर हम इसका इफेक्ट शो करेंगे कि व्हेन द प्राइस ऑफ वन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स चेंज, देन व्हाट इफेक्ट्स ऑन द डिमांड ऑफ अदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. फॉर एग्जांपल कार एंड पेट्रोल. कार एंड पेट्रोल, इट मीन्स
when the price of car increases then what effects on the demand of as a petrol. सपोज करें अगर कार की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो पेट्रोल की डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. आप ये देखो, कार की प्राइस इंक्रीज हो गई, इट मींस इसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, व्हीकल की संख्या कम हो जाएगी, तो क्या होगा, पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी. राइट, इट मींस व्हेन द प्राइस ऑफ कार इंक्रीजेस देन डिमांड फॉर पेट्रोल आल्सो डिक्रीजेस, एंड व्हेन द प्राइस ऑफ कार डिक्रीजेस देन डिमांड फॉर पेट्रोल increases. It means the price of one complementary goods and demand of another complementary goods are negatively related. यानी इन दोनों में it means एक सिंपल सा पॉइंट है, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस और डिमांड में पॉजिटिव और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन पाया जाता है, नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है. इसके बाद हमारे पास तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. थर्ड है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इट मींस इन विच वी इंक्लूड एज ए सीजन, लाइक डिसलाइक एज वेल एज फैशन या ट्रेंड को इंक्लूड करते हैं. जैसे मान लो किसी भी वस्तु का ट्रेंड या फैशन हो जाता है तो नेचुरली प्राइस हाई होते हुए भी उसकी डिमांड ज्यादा होती है. और अगर मान लो समर सीजन में, जैसे फॉर एग्जांपल समर सीजन में कॉटन क्लोथ्स की और विंटर सीजन में वूलन क्लोथ्स की डिमांड ज्यादा होती है, और जिस वस्तु को हम लाइक करते हैं उसकी प्राइस हाई होते हुए भी उसकी डिमांड ज्यादा होगी. तो इट मींस इफ देयर इज ए फेवरेबल चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस देन डिमांड आल्सो इंक्रीजेस, एंड इफ देयर इज ए unfavorable changes in test and preferences then demand also decreases. It means monsoon fashion also affect the demand of the commodities. यानी जैसे ट्रेंड्स है, फैशन है, विंटर है, ऐसे विंटर सीजन है, समर सीजन है, इनका भी डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है. देन नेक्स्ट है वाई. वाई इट मींस फोर्थ है हमारे पास इनकम ऑफ द कंज्यूमर, of the consumer. Income of the consumer also affect the demand of the commodities. यानी ये भी डिमांड को अफेक्ट करती है. If the income of the consumer increases, then demand also increases, and when income of the consumer decreases, then demand also decreases. But this also depends which types of goods and services we purchase. So इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले आपको तीन प्रकार की गुड्स में डिफरेंस करना होगा, और ये तीन प्रकार की गुड्स कौन सी हैं. फर्स्ट है नॉर्मल गुड्स, सेकंड है एज ए इंफीरियर गुड्स, और थर्ड है गिवन गुड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम नॉर्मल वे में कहें, व्हाट डू यू मीन बाय द नॉर्मल गुड्स. नॉर्मल गुड्स विच आर द हाई क्वालिटी गुड्स. हाई क्वालिटी जो गुड्स होती है, ब्रांडेड जो वस्तुएं होती है, वो नॉर्मल गुड्स में इंक्लूड होती है. इंफीरियर गुड्स लो क्वालिटी और इसमें चीप क्वालिटी गुड्स आती है. लेकिन इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको इनकम के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे. नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स विच इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव एंड प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव, and the inferior goods which income effect is negative and price effect is also negative. And given goods are those goods which income effect is negative and price effect is positive. These are the paradox of the law of demand. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम तीनों का एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले सकते हैं. जैसे फुल क्रीम मिल्क नॉर्मल गुड्स में इंक्लूड होगा, एज ए टोन्ड मिल्क इंफीरियर गुड्स में, और डबल टोन्ड दीज आर द गिवन गुड्स, ये गिवन गुड्स में इंक्लूड होगा. तो जो इनकम है वो डिपेंड करता है, जैसे इनकम ज्यादा इंक्रीज होगी देन द कंज्यूमर परचेज द नॉर्मल गुड्स, और इनकम डिक्रीज होगी या तो वो इंफीरियर गुड्स परचेज करेगा या गिवन गुड्स परचेज करेगा. तो इनकम ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड ऑफ द कमोडिटीज, ये भी वस्तु की डिमांड को अफेक्ट करेगा. देन नेक्स्ट है population. Next है population. The population of
size of the population and composition of the population also affect the demand of the commodities. It means population बढ़ेगी तो demand भी बढ़ेगी, population decrease होगी तो demand भी decrease होगी, right? ये composition of population पर भी डिपेंड करता है, यानी इसमें किसकी संख्या ज़्यादा बढ़ती है, मेल की संख्या ज़्यादा बढ़ती है, फीमेल की संख्या ज़्यादा बढ़ती है, चिल्ड्रन की संख्या ज़्यादा बढ़ती है, तो उसी के अकॉर्डिंग वस्तुओं की डिमांड भी इंक्रीज होती है. देन नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. यानी distribution of income is also affect the demand of the commodities. It means if there is an unequal distribution of our income, अगर हमारी इनकम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो रिचेस्ट बिकम मोर रिच एंड पुअर बिकम मोर पुअर, तो इससे क्या होगा, डिमांड डिक्रीज होगी. और इफ देयर इज ए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर नेशनल इनकम देन द डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांड किसके द्वारा की जाएगी, पूरेस्ट सेक्शन के द्वारा की जाएगी. रिचेस्ट सेक्शन के पास अगर और ज्यादा पैसा आ जाएगा तो उन पर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो डिमांड बढ़ेगी और अनइक्वल होगा तो डिमांड डिक्रीज होगी. देन लास्ट इज, नेक्स्ट है इसमें लास्ट है एज ए फ्यूचर एक्सपेक्टेशन. फ्यूचर एक्सपेक्टेशन. Future expectation. It means if the consumer expected that in the near future the price of the particular commodities increases, then what effect on the demand of the commodities at present? Demand क्या हो जाएगी? It means अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की पॉसिबिलिटी है तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी प्रेजेंट में. और if the consumer expected that in the near future the price of the particular commodities decreases, that demand of the particular commodities would be decreased in present. तो जो एक्सपेक्टेशन है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है कि भविष्य में प्राइस में क्या चेंज होने वाला है, ये भी वस्तु की डिमांड को अफेक्ट करती है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. For the further connection, please connect our YouTube channel. Thanks and have a nice day.